Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to resume our studies after your midterm examination, and we are going to study a new division in modern biotechnology, and that division is industrial biotechnology. In this particular division, we will discuss all those reactions or all those processes which are very much familiar to you already, but we will discuss that how those simple procedures when they are gone to higher levels or they when utilized at industrial level, what will be the requirements for any process to be used at industrial level, and what are the prerequisites for any process when it enters the industry. And in today's lecture is basically an overview of what worldwide is being doing in industrial biotechnology, and how biotechnology helpful in producing valuable substances or products at industry level. So let's discuss first of all what is industrial biotechnology. This is the reference of this lecture. You can consult these books for any further query. Comprehensive Biotechnology. It's a very good book by Murray Myoyong. And the next book is Smith, which you already been studying with this in this course. So first of all, industrial biotechnology. It refers to the application of biotechnology for industrial purposes. In doing so, organisms and the parts of the organisms like bacteria, fungi, yeast, mold, animal cells, plant cells, insect cells, enzymes from different sources. They are used, and the purpose of their usage is the production of different valuable products and their manufacturing. So, in different industrial application of contemporary times, producing biological entity are engineered with the tools of modern biotechnology. All of you know that we are discussing this division in under modern biotechnology, and modern biotechnology means use of recombinant DNA technology to synthesize or to clone different valuable genes from their natural sources, and incorporation of that genes into some synthetic source or some other natural moiety, like in bacteria, in fungus, in different plant cell cultures and animal cell cultures. And we call this division as wide biotechnology as well. So this is a brief introduction of what industrial biotechnology is. Then how it works? It basically works by transforming the biomass. The biomass means agricultural byproducts, organic wastes, algae, and these biomass are converting into some useful bioproducts like biofuels, bio-based chemicals, and the usage of these non-renewable resources, and the usage of these renewable resources basically reduces mankind reliance on the oil and all the other non-renewable resources. Basically, the ulterior motive of using biomass is you can say is an endeavor to convert our focus from non-renewable resources, which are going to vanish in few more years, after you can say one or more decade, and we are facing the shortage of oil, gas, and all the fossil fuels. So the purpose of this shift is to have uh, understanding that how we can rely on renewable resources, and biomass is one of the renewable resources. So industrial biotechnology could save energy in production processes and lead to significant reduction in greenhouse gas emissions, and it helps in fighting global warming. So the other aspect of using biomass, or you can say renewable energy sources, is to shift the whatever we have done in the last, you can say, 100 years. We use uh, unknowingly and unnecessarily
the carbon sources, and we use fuel and oil and petrol, and we are just going to add up harmful substances in our in our environment. So when we modify our pattern of using non-renewable resources with renewable resources, then we definitely we try to cut down our you can say greenhouse gas emissions and global warming effect. And also the usage of biomass and the all the other renewable resources, they help to performance and suitability for industry and high value products. So it means you are not just using biomass, you are not just focusing on the usage of renewable energy sources, but you are also gaining a improved performance with it, and sustainability as well of the industry. So the activities in industrial biotechnology, when we call something to be a part of industrial biotechnology, then microbes are there. Obviously, up till now, you are very well aware that in recombinant DNA technology, we are using microbes. Either we are getting genes from animals and plants, but we are using microbes for their you can say as a vector, as a manipulator. But in industrial biotechnology as well, microbial technology is the core of the industrial biotechnology. And microbial technology means you are using microbes to obtain a product or service of economic values, and we called it as fermentation as well. So what will we are doing? We are doing isolation of microorganism from the nature, screening of those microorganisms for the valuable products, whether they are going to give you ethanol, methanol, acetone, or some other single cell proteins in any ways. So, and the improvement of the product yield, then maintenance of the cultures of those microbes, and then culturing using bioreactors. This point is basically this mass culturing is the point where industrial type of thing plays its role, that you are using bioreactors. We will discuss inshallah what are the bioreactors and what are their different categories, and what is the engineering behind creating this bioreactor. So this step is basically, you can say, industrial scale step, and the rest of the steps are basically lab scale, and they obviously they be checking the efficacy of these lab scale production to the pilot scale production, and then into industrial scale level. After the mass culturing in the bioreactors, there is recovery of product. There are different processes and different techniques, methods available, which are helpful in creating the in recovery of the products. Now talking about the applications, what are the benefits, what are the outcomes, beneficial outcomes, which I am talking again. That benefits are the metabolite productions, metabolite, any metabolite, ethanol, methanol, acetone, and and the other any type of sugars, and any kind of you can say single molecules. They are the metabolite productions, and there comes the anaerobic digestion. It's also the application of industrial biotechnology for methane production. Then waste treatment, obviously, it's very important and promising part of industrial biotechnology, that you are going to you can say आप बेसिकली जो वेस्ट है उसकी हार्मफुलनेस को कम कर रहे हैं. वो ऑर्गेनिक वेस्ट भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी हो सकता है. तो वेस्ट ट्रीटमेंट is again one of the applications of industrial biotechnology. Then production of biocontrol agents, your biopesticides and bioherbicides. इनकी आपने थोड़ी बहुत पढ़ भी ली है प्लांट्स में, इस तरीके से herbicides और plant bio insecticides जनरेट होते हैं. फर्मेंटेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, ये फूड प्रोडक्ट्स तो जो है ये तो मतलब टाइम इमेमोरियल से चल रहा है ना, कि जब किसी ने दूध से दही बनाई तो फर्मेंटेशन हो गई. फिर उसके बाद चीज़ मेकिंग है, वाइन मेकिंग, ब्रूइंग इंडस्ट्रीज, ये सारा ऑलरेडी मतलब ये उस वक्त से चल रहा है जब लोगों को पता नहीं था कि वो कोई साइंस वाला काम कर रहे हैं, वो कोई बायोटेक्नोलॉजी का काम कर रहे हैं.
ठीक है, तो ये हमने अपने कोर्स के स्टार्ट में भी हमने डिस्कस किया था कि जो है ना पता नहीं कितने एडीज़ या बीसीज़ से जो है ना चाइनीज़ जो है वो बना रहे हैं, या उससे पहले के लोग जो है वो ये कन्वर्जन्स कर रहे हैं। माशाल्लाह हमारे घरों में दादियाँ-नानियाँ बहुत मतलब बहुत हमारे आबा-ओ-अजदाद जो हैं वो दही घर में बनाते थे, मक्खन, मलाई ये सब चीज़ें घर में बनती हैं। तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी यही तो थी जिसको फिर आगे और रिफाइनमेंट्स के साथ और डिफरेंट मॉडिफिकेशंस के साथ फिर रिकॉम्बिनेंट इंडिया टेक्नोलॉजी की वजह से इसके अंदर चेंजेस आई। तो फर्मेंटेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स ये ओरिजिनली तो यही है बायोटेक्नोलॉजी की आप कह लें इब्तिदा। उसके बाद ही बाकी सारी चीज़ें आई हैं। बायो बेस्ड फ्यूल एंड एनर्जी ये उसकी बहुत ही मॉडर्न और एडवांस फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी की। ठीक है, तो ये एप्लीकेशंस हैं, इनको हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे अपने इस कोर्स में कवर करने की मैक्सिमम को। अब मेटाबोलाइट प्रोडक्शन की बात करें तो मेटाबोलाइट प्रोडक्शन में हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे प्रोड्यूस नंबर ऑफ मेटाबोलाइट्स ड्यूरिंग देयर ग्रोथ यूजिंग चीप सब्सटेंसेस। बेसिकली होता यही है, मतलब जो अप्रोच है वो यही है कि एक माइक्रोब है, उसने अपनी वो तो अपने लिए काम कर रहा है ना, वो तो अपनी अपनी ग्रोथ इंक्रीज कर रहा है या अपनी रिप्रोडक्शन के लिए उसने अपना जो है ना डिफरेंट केमिकल्स बनाने हैं, लेकिन वो केमिकल्स वो सरप्लस अमाउंट में बनाता है। तो वो इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए फिर आप उसमें से उनसे वो जो मेटाबोलाइट्स हैं वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें एसीटोन, ब्यूटानॉल आ गया, अल्कोहल्स हैं, एंटीबायोटिक्स भी इसी तरह जनरेट हो रही हैं, एंजाइम्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं। एसिड्स और ये जो एथेनॉल्स हैं, ये सारे ये एथेनॉल्स और एसीटोन वगैरह ये केमिकल मेथड से भी जनरेट होते हैं, लेकिन ये केमिकल मेथड से जो इसका जो आपका कहते हैं ना वेस्ट जो है वो ज़्यादा हार्मफुल होता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेंडली नहीं होता, एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होता। तो बेसिकली केमिकल मेथड्स के ज़रिए भी ये मेटाबोलाइट जनरेट होते हैं, मतलब जितने भी एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स भी इवन केमिकल मेथड से जनरेट हो रहे हैं, लेकिन माइक्रोबियल प्रोसीजर्स के ज़रिए इनको जब आप प्रोड्यूस करवा रहे हैं तो कोशिश यही है कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स, इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कम से कम हों। ठीक है? तो डिफरेंट माइक्रोब्स जो हैं पर्टिकुलर उनको यूज़ करते हुए ये चीज़ें सिंथेसाइज़ होती हैं। हम इनमें से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कुछ सारे तो नहीं ऑब्वियसली, लेकिन हम एक-एक एसिड या एक अल्कोहल ज़रूर पढ़ेंगे कि कौन-सा ऑर्गेनिज़्म सिंथेसाइज़ करता है और इंडस्ट्रियल लेवल पे कौन-कौन से ऑर्गेनिज़म्स का कंसोर्शियम जो है वो यूज़ होता है ये चीज़ें सिंथेसाइज़ करने के लिए। नेक्स्ट है जी बायोमास प्रोडक्शन। बायोमास प्रोडक्शन यही है कि आप इंडस्ट्रियल लेवल पे कोई इस तरह के स्पीशीज़ या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो जनरेट करें जो कि अल्टीमेटली नंबर ऑफ आप कह लें सेल या नंबर ऑफ सेल्स इनके ज़्यादा हो, मतलब इसमें आपने करना ऑर्गेनिजम्स को ही ग्रो है, ठीक है? बायोमास में आपने सेल्स ही ग्रो करने हैं, लेकिन वो सेल्स इस तरीके से ग्रो करने हैं कि आप उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे जिनकी वजह से वो जो है क्या करेंगे, आपकी प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ कराएँगे, आपके एनिमल्स की अच्छी ग्रोथ करवाएँगे, ठीक है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को यूज़ करके आप सॉइल की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज़ करवा रहे हैं। जैसे कि नाइट्रोजन कंटेंट अगर आप इंक्रीज़ करवा रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ करवा के फास्फोरस अगर जो है वो सॉल्युबलाइज़ करा रहे हैं तो सॉइल फास्फोरस जो है आपको पता है एलगी की ग्रोथ की वजह से यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस होता है। तो फास्फोरस जो है वो हार्मफुल हो जाता है प्लांट्स के लिए भी, तो उसको सॉल्युबलाइज़ करके तो इन सब चीज़ों के लिए बायो फर्टिलाइज़र्स बनते हैं और इन बायो फर्टिलाइज़र्स को बनाने के लिए राइज़ोबियम स्पीशीज़ हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड एज़ोला, एज़ोवेक्टर्स एंड एज़ोस्पाइरलम, ये सारे के सारे माइक्रोब जो हैं, इनको यूज़ किया जाता है और फिर इनको यूज़ करके इनको इनको सॉइल के साथ मिक्स कर दिया जाता है ताकि ये एज़ अ बायो फर्टिलाइज़र्स के तौर पे जो भी कंटेंट सॉइल में मौजूद है, जो कि डिफरेंट सोर्स से आया है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से आया है या जो आपकी नॉर्मल इरिगेशन मेथड है उसमें पानी जो आ रहा है वो अगर जो है उसके अंदर फॉस्फोरस कंटेंट ज़्यादा है तो फिर ये सारे के सारे माइक्रोब्स जो हैं वो उसको प्लांट के लिए यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि प्लांट्स को भी फ़ायदा हो और सॉइल के अंदर उनकी जो आप कह रहे हैं एक्यूमुलेशन लेवल है वो भी नॉर्मल हो जाए। तो इस तरीके से बायोमास प्रोडक्शन में बायोटेक्नोलॉजी रोल प्ले करती है।
नेक्स्ट है रिकवरी ऑफ मेटल्स। रिकवरी ऑफ मेटल्स में ये है, नॉर्मली आपको पता है जितनी भी मेटल्स हैं वो अर्थ से निकलती हैं, ज़मीन में जो आप कह रहे हैं रेत है या जो आपकी रॉक्स हैं उनको ही प्रोसेस करके मेटल्स को आइसोलेट किया जाता है, लेकिन वो केमिकल मेथड से किया जाता रहा है। केमिकल मेथड्स की वजह से अगेन उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि आपको बहुत ज़्यादा हाई पीएच मेंटेन करनी पड़ती है, या तो एसिडिक पीएच है या अल्कलाइन पीएच आपने रखनी पड़ती है। तो जब वो आप जो वाटर वहाँ से रिलीज होता है वो भी फिर एसिडिक या अल्कलाइन इन नेचर होता है, और फिर वो वाटर कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली वो फिर स्ट्रीम्स में जाएगा। तो जो केमिकल मेथड्स हैं वो थोड़े से मेटलर्जी के जो केमिकल कन्वेंशनल मेटलर्जिकल प्रोसीजर्स हैं वो अन इकोनॉमिकल भी हैं और वो साथ ही साथ पोल्यूशन भी कॉज करते हैं। तो एक एस्पेक्ट है कि, और इस पे काफ़ी काम भी हुआ हुआ है कि माइक्रोब्स को यूज़ किया जाए ताकि वो वैल्यूएबल मैटर को रिकवर करें फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स और आपके जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस हैं उसके अंदर से। ठीक है, तो इसका इस मकसद के लिए जैसे लीचिंग ऑफ कॉपर है, तो कॉपर सल्फेट फ्रॉम ओर्स, तो कॉपर की जो लीचिंग हो रही है ओर्स में से, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए माइक्रोब्स यूज़ हो रहे हैं। डीसल्फ्यूरेशन ऑफ कोल्स बाय थायोबैसिलस स्पीशी, जो कोल होता है उसके अंदर सल्फर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी डीसल्फ्यूरेशन करने के लिए जो है ना माइक्रोबियल ये थायोबैसिलस स्पीशी को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में ये भी एक फर्दर सब डिवीजन आप कह सकते हैं जो ये इस तरह की प्रोसीजर्स को मॉनिटर करते हैं, चेक करते हैं और इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या है जी? यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू कंट्रोल इंसेक्ट, पेस्ट, पैथोजन एंड वीड्स। Which constitute biological control and biological agents employed for the purpose biocontrol agents। ये biocontrol agents हमने प्लांट बायोटेक्नोलॉजी डिवीजन में पढ़ ली हैं कि स्ट्रेप्टोमाइसिस की ही स्पीशीज के अंदर एक ऐसी स्पीशी है जिसको यूज करके जो है ना स्ट्रेप्टोमाइसिस की दूसरी जो हार्मफुल स्पीशीज है उनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये बायो इंसेक्टिसाइड और बायो हर्बिसाइड्स भी आपने पढ़े हुए हैं। ये ग्लाइकोफोसेट के लिए जो ईपीएसपीएस एंजाइम्स को क्लोन करके इसको चेक किया गया आगे। एट्राजीन को डिसफंक्शनल करने के लिए भी बायो हर्बिसाइड और इंसेक्टिसाइड बने हैं। तो ये सारा ये कई तरह से आपने इसको पढ़ रखा है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी एंड फूड प्रोडक्शन। अब जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी फूड प्रोडक्शन तो इसका बेसिक आप कह लें सोल है, सोर्स है कि बेसिक जो सारी नॉलेज है वो फूड के ज़रिए हमें बायोटेक्नोलॉजी की आई है, जो एक सदियों से तरीक़ेकार हो रहा चल रहा है। ब्रेड मेकिंग हो जाए, चीज़ मेकिंग, वाइन मेकिंग, योगर्ट मेकिंग, इन सब की ही मज़ीद स्टडी से हम बायोटेक्नोलॉजी तक पहुँचे हैं और फिर उसी की मज़ीद रिफाइनमेंट से इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में तो एंजाइम्स का बहुत अहम रोल है फूड प्रोडक्शन में। ना सिर्फ वो प्रोडक्शन प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं बल्कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव करते हैं। The digestibility of the nutrients can also enhance with the help of enzymes। तो एक वाइड रेंज ऑफ फूड एंड फीड प्रोडक्ट्स है जो कि इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी के में इस्तेमाल के ज़रिए बनती है। जैसे कि एवरीडे फूड की बात हम करें, चीज़ के अंदर एनिमल रेनेंट यूज़ होता है ताकि चीज़ बनाई जा सके। रेनेंट एंजाइम है जो कि कर्डल्स करवाता है मिल्क के अंदर। तो लेकिन ये रेनेंट जो है ना, जो कि ये काफ से लिया जाता है और काफ भी पर्टिकुलर एज का होता है, तो उसको जो स्लाटर करके उसके अंदर से फिर ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इसकी वजह से इसकी मतलब आप कह लें ओवरऑल डेफिशिएंसी है एनिमल रेनेंट की, क्योंकि आप कितने को काफ जो है वो स्लाटर करेंगे, उनकी स्पीशीज को आप इंडेंजर कर देंगे। तो इसके फिर ऑल्टरनेट ढूंढे गए कि रेनेंट्स के डिफरेंट ऑल्टरनेट माइक्रोबियल तरीके से, और डिफरेंट चिकन के हो गए, चिकन की के अंदर जो रेनेंट एंजाइम है वो यूज़ करके, बेसिकली ये प्रोटीलिटिक एंजाइम्स ही हैं रेनेंट जो है, इनको यूज़ किया। तो डिफरेंट तरीक़ों से फिर आइसोलेट किया गया कि चीज़ में आप डिफरेंट माइक्रोबियल रेनेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ काफ रेनेंट से ही चीज़ नहीं बनती। इसी तरीके से फ्रूट जूसेस के अंदर क्लैरिटी डेवलप करने के लिए वो जो नॉर्मली जब आप घर में एक जूस निकालते हैं नॉर्मल, तो उसके अंदर वो क्लियर नहीं होता, वो टर्बिड होता है।
ठीक है। तो लेकिन जब इंडस्ट्रियल लेवल पे आप ये बनाते हैं तो टर्बिडिटी की वजह से शेल्फ लाइफ कम हो सकती है। आप देखें ना, घरों में जब आप जूस बनाते हैं तो वो जूस आप ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते, ठीक है। आप 1 दिन, 1.5 दिन के बाद वो आपको या तो वो उसके अंदर जो है ना स्मेल आना शुरू हो जाती है, या उसकी विस्कोसिटी डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। और बेसिकली ये फंगल की वजह से होता है। तो ये क्लैरिटी डेवलप करने के लिए डिफरेंट फिर एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, जो कि फ्रूट जूसेस के अंदर ट्रांसपेरेंसी या क्लैरिटी डेवलप करते हैं। इसके अलावा बेबी फूड्स जो बनती हैं उसके अंदर प्री डाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है। ये प्री डाइजेस्टेड फूड भी माइक्रोब्स की हेल्प से प्री डाइजेस्ट कराया जाता है। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में ये सारी चीज़ें शामिल हैं, और इसके अंदर इनोवेशन भी है, और आप कह सकते हैं कि अनटायरिंग रिसर्च है इसके अंदर, जिसके ज़रिए आपको डिफरेंट जो चीज़ें मार्केट में मिल रही हैं वो मौजूद हैं। फर्मेंटेशन ऑफ डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स, ये तो एक कॉमन सी चीज़ है। फर्मेंटेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, ये तो हम सबको भी पता है, लेकिन ये कमर्शियल लेवल पर जब हो रहा है, इंडस्ट्रियल लेवल पर जब हो रहा है, तो इसके अंदर फिर आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ चीज़ों की को चेक किया जाता है कि कौन से माइक्रोब ज़्यादा अच्छे तरीके से फर्मेंटेशन करा सकते हैं, या क्या ड्यूरेशन होना चाहिए फर्मेंटेशन का। तो डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स, चीज़, योगर्ट, फिश, मीट प्रोडक्ट्स, इन सब की फर्मेंटेशन हो जाती है। बेवरेजेस की बात करें तो अल्कोहलिक टी एंड कॉफ़ी, ये भी फर्मेंटेशन प्रोडक्ट हैं। बेकर्स यीस्ट की प्रोडक्शन, ये भी फर्मेंटेशन के थ्रू होती है और इंडस्ट्रियल स्केल पे होती है। फूड एडिटिव्स जितने भी हैं, ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट्स, कलर, फ्लेवर, स्टेबलाइजर्स, ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल लेवल पे बनते हैं। नॉवल फूड्स लाइक सोया सॉस, टेम्फ, मिसो, ये सब चीज़ें जो हैं ये मुख्तलिफ रीजन्स में एज अ यू कैन से एज अ फूड यूज़ हो रही हैं। मशरूम प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी की सारी फर्मेंटेशन प्रोडक्ट हैं। अमाइनो एसिड, विटामिन, ये फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स हैं। इंडस्ट्री लेवल पे जब भी कोई चीज़ सिंथेसाइज़ होती है या प्रोड्यूस होती है, तो वो उसके अंदर फर्मेंटेशन और फर्मेंटर ही उसका सबसे अहम कंपोनेंट है। स्टार्च प्रोडक्ट्स जो हैं वो फर्मेंटेशन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। ग्लूकोज एंड हाई फ्रक्टोज सिरप्स, फंक्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड पैक्टिन, ये सारा कुछ फर्मेंटेशन के थ्रू होता है। अब हम बात करते हैं बायो बेस्ड फ्यूल एंड एनर्जी की। आप सबने सुना है जी, बायोफ्यूल बन रहे हैं, बायोफ्यूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं कुछ कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज में तो बायोफ्यूल बहुत मतलब इजीली यूज़ हो रहा है। उनकी जो आप कह लें कि 40-50% जो है वो बायोफ्यूल यूज़ हो रहा है। जैसे ब्राज़ील है, यूएसए है, इसी तरह फ्रांस में भी है। तो को और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर बायोफ्यूल्स, मतलब कंप्लीटली 100% तो नहीं, लेकिन ये है कि 50-70% जो है वो बायोफ्यूल से अपनी एनर्जी सेक्टर को चला रहे हैं। एथेनॉल करंटली प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटिंग ग्रेन्स, विच इज़ एन ओल्ड टेक्नोलॉजी कि आप ग्रेन्स को फर्मेंट करके अंदर एथेनॉल निकालें, उस एथेनॉल को फिर आप आगे बायोडीजल बनाने के लिए या उसके अंदर मतलब मिक्सिंग करके, पार्शियल मिक्सिंग के ज़रिए आप उसके अंदर उसको गाड़ियों में एज अ फ्यूल पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा लेकिन सेलुलोज एंजाइम टेक्नोलॉजी, इट अलाउज द कन्वर्जन ऑफ क्रॉप रेजिड्यू व्हिच इज स्टेम लीव्स एंड हर्ल्स टू एथेनॉल। ये जो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हुई है, और बहुत एक्सटेंसिवली रिसर्च हुई है डिफरेंट क्योंकि जो क्रॉप रेजिड्यू है, जो ग्रेन्स है ना, वो तो फिर कंपटीशन हो जाएगा कि आपने मतलब लोगों के लिए खाने के लिए कम हो जाएगा अगर आप उससे ज़्यादा फ्यूल जनरेट करेंगे तो कोशिश जो है वो यही होती है, हो रही है वर्ल्ड वाइड, कि जो क्रॉप रेजिड्यू है, स्टेम है, लीव्स हैं, या और मज़ीद जो आप कह लें बायो प्रोडक्ट्स हैं एग्रीकल्चर फील्ड के, उन सबको यूज़ करके उससे 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 एथेनॉल प्रोड्यूस की जाए ताकि उससे एनर्जी ली जा सके। इससे होगा ये अल्टीमेटली कि आपकी ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कम से कम होंगी, ठीक है। 90% जो है ना वो कमी हो सकती है अगर आप एथेनॉल को या इससे रिलेटेड जो आपके क्या कहते हैं ऑयल्स को यूज़ करके आप पेट्रोल या जो आपके एनर्जी सेक्टर्स हैं उनको उसमें यूज़ करें, तो ऑयल से 90% तक जो है कार्बन एमिशंस कम हो सकती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इट अलाउज फॉर ग्रेटर डोमेस्टिक एनर्जी प्रोडक्शन एंड यूजेस रिन्यूएबल फीडस्टॉक। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इस तरह यूज़ होगा। नेक्स्ट है जी कि ये जो एडवांस बायोफ्यूल्स हैं, ये बायोमास मटेरियल से जो कि एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री रेजिड्यूज़ हैं, जिसमें वेस्ट वुड है, स्ट्रॉ है,
विकास है, ये आपके शुगर केन का जो विकास है वो इसमें यूज़ हो सकता है, या आपकी जो वुड इंडस्ट्री है जो कि लकड़ी का काम कर रहे हैं, वहाँ से जो लकड़ी का बुरादा निकल रहा है, उस बुरादे को यूज़ करके आप बायोफ्यूल बना सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। ऐसी इससे कोशिश काम जारी है। क्योंकि ये जब आप इस तरह का मटेरियल यूज़ करते हैं तो कोई एक एंजाइम इसमें रोल प्ले नहीं करता। इसके अंदर फिर आपके पास ग्रुप ऑफ एंजाइम्स हैं जो मुख्तलिफ टाइम्स में यूज़ होंगे, जो कि डिफरेंट माइक्रोब्स से ऑब्वियसली आप इन्हें एक्सट्रैक्ट किए हुए होंगे। डिफरेंट माइक्रोब्स से आप डिफरेंट एंजाइम्स एक्सट्रैक्ट करके उनको फिर जब आप इनके साथ ट्रीट करवाएँगे, इन प्रोडक्ट्स के साथ, इन आपके जो सबस्ट्रेट्स हैं इनके साथ, वेस्ट वुड हो गया, स्ट्रॉ हो गया, विकास हो गया, स्विच ग्रासेस हो गई, तो उनके साथ आप यूज़ करेंगे तो फिर आपके पास एथेनॉल प्रोड्यूस होगा। तो ये मार्केट जो डिस्कार्डेड प्रोडक्ट की है, इससे सब्सिक्वेंटली इट हेल्प टू इंक्रीज फार्मर एंड लैंड ओनर इनकम, और इससे रूरल रूरल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। उसके अलावा वेस्ट मटेरियल लाइक म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो इसको भी यूज़ किया जा सकता है बायो बेस्ड प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, इसका पोटेंशियल है कि एक तो वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जनरेट कर सकता है, साथ ही साथ जो लैंडफिल्स हैं, जो कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, जो गार्बेज इकट्ठा हो रहा है, उसको भी कम कम होगा वो भी आहिस्ता-आहिस्ता। तो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी जितनी भी आपने इसकी फर्दर डिवीजन्स देखी, उन सब का अल्टीमेट बेनिफिट जो है वो यही है कि आपके पास लो इनपुट सबस्ट्रेट है, उसको यूज़ करके आप हाई थ्रूपुट आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, हाई रेट प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं, और जो प्रोसेसेस हैं दे आर ट्राई टू बी environmental friendly, and they are more renewable in nature, and not and without compromising the efficiency as well. आप renewable resource जब यूज़ कर रहे हैं तो आप efficiency को compromise नहीं कर रहे, बल्कि आपकी efficiency बढ़ ही रही है आपके ये जो friendly resources को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो इसके साथ ही thank you so much, and if you have any question you can please ask. अल्लाह हाफ़िज़।